reproduction in mammals. Actually, mammals reproduce only by one means, that is the sexual reproduction. They have only one means of reproduction. One mean or way of reproduction, that is sexual reproduction. Now, as far as the cellular division is concerned, first we have to discuss the cellular division, then we start the different ways through which that type of production is completed. ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्युलर डिवीजन को जरा देख लेते हैं कि कितने टाइप की सेल्युलर डिवीजन होती है मैमेलियन बॉडी में और लिविंग बॉडी में जनरल. सेल्युलर डिवीजन दो तरह की होती है. वन इज माइटोसिस and second one is the meiosis. As far as mitosis is concerned, mitosis is solely meant for growth, repair, and maintenance of the body. Okay. Whereas meiosis is concerned, it is purely related to reproduction, that is formation of gametes. माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस होता कैसे है? बेसिकली माइटोसिस में जो है फुल नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स जो कि एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल के अंदर होते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर सेम रेशियो पे रहते हैं. दैट मींस सपोज ये एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है और हम ये कह लेते हैं कि सपोज इसके अंदर जो है 4 क्रोमेटिन्स है. इसके अंदर 4 क्रोमेटिन्स है. अब अगर ये माइटोसिस के अंदर जाएगा तो हाउ इट डिवाइड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने क्रोमेटिन्स को डुप्लीकेट करेगा, डबल करेगा और फिर दे गेट इनटू क्रोमोसोम्स. ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे. ही जैसा डुप्लीकेट बना लेंगे. Then in next step you can separate apart from each other. अच्छा, इसमें बहुत सारे बीच में स्टेप्स आते हैं. स्पिंडल फाइबर बनते हैं और दूसरे स्टेप्स होते हैं, बट ये कि उनको एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ओ लेवल कोर्स. ठीक है, लिहाजा उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है. ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं और ये स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है. अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अल्टीमेटली क्या होगा कि 2 नए डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे. ओके, two new daughter cells are formed having same number of chromatin as that of the parental cell. ठीक है,
अब देखो इसके अंदर 4 क्रोमेटिन्स और इसमें भी 4 क्रोमेटिन्स. Okay, so that's how the number of chromosome chromatins becomes same from the beginning till end. 2n and then 2n. That is, they are diploid, and at the end, the daughter cells are also diploid. These type of multiplication of cell takes place for the growth, increase in mass, that is repairing, maintenance of the body. Okay, now meiosis. Meiosis is the type of cellular division which takes part actually in the reproduction, that is especially in the sexual reproduction. This is the process through which the gamete formation takes place. How it is being done? It has basically 2 steps. It is divided into 2 steps. That is meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 2. As far as meiosis 1 is concerned, is same as that of mitosis. One parental cell, okay, and it forms a duplicate. Duplication करता है अपने ये chromatins की. And they will ultimately give rise to 2 diploid cells. कि meiosis 1 में सेम वही स्टेप्स होते हैं जो कि माइटोसिस के होते हैं. One, two, three, four. Okay. So meiosis 1 के अंदर इधर डिप्लॉइड थे और जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए वो भी डिप्लॉइड ही है. अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये जाएंगे meiosis के अंदर. ठीक है. अब ये meiosis में कैसे जाएंगे? ये एक डॉटर सेल मैंने इधर रखा. ठीक है, ये वाला 1, 2, 3, 4 and the second one. ठीक है, 1, 2, 3, 4. Now they are not going to duplicate themselves. They just divided into 2 equal halves. And each nucleus contains half number of chromatins. इसके बीच में और बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है या जेनेटिक वेरिएशन देने के लिए. फुल सेम क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं, उसमें चेंजेस आती हैं बीच में काफी सारी. सो वो उसको अभी हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं. हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं अल्टीमेटली. 2n, 2n, n, half number of chromatins, haploid. All cells are haploid. And these are the diploid. Okay. ये जो एक सेल है ultimately at the end they will give rise, or it will give rise 4 gametes, 4 cells, and these 4 cells that are haploid in nature are called the gametes. If it is produced in the ovary of the female, then they are called the ova or egg. If they are produced in the testicles of the male, then they are called the sperms. Okay, and they have got a motile structure that is called the tail. Okay, so it is not that simple process as that I explained to people. इतना simple नहीं होता, इसमें बीच में बहुत सारे steps होते हैं, but चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है, that's why इसको जो है इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है. Structure of gametes.
So first of all, male gamete. This is the structure of male gamete of man. Okay. And that's the sperm. Okay. The structure is divided into three major parts. Number one is the head. This one is the head. This one is the middle piece or neck. And this one is the tail. Okay. On the head, on the top of the head, there is a structure called the acrosome. Acrosome is present and it is responsible for secreting the enzyme lysosome, for dissolving the slimy layer of egg cell membrane. Okay. And as far as neck is concerned, it contains lots and lots of mitochondria, because इसको बहुत ज्यादा तेजी से मूव करना होता है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा यहाँ पे अच्छे खासी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अच्छा, हेड के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेस होता है, लेस साइटोप्लाज्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसका इतना ज्यादा स्टे होता ही नहीं है, ये इट्स जस्ट यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, और गैमीटिक ये इटसेल्फ जो है गैमेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमेटिड्स को प्रोपगेट करने के लिए यूज होता है, न्यूक्लियस को इससे फ्यूज कराना होता है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है, इट गेट्स डेड। So that's why cytoplasm ज्यादा प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। And the center one is the big nucleus। ठीक है। And the neck contains the mitochondria. Mitochondria is the generator of energy, that is the ATP, which charges the tail for movement. It's motile, ठीक है, and used for movement। Okay। अच्छा, sperms are produced in a very large amount, and they are matured in the testicles, formed and matured in the testicles. Where they are found? In the testicles। Okay, now the next one is the female reproductive or female gamete, sorry। These are the testicles। Okay, now the female gamete, female gamete or ova। It is big in size and has got lots and lots of cytoplasmic content in it। Okay, it has got two membranes. One is the outer membrane and other one is the inner membrane, in order to protect its structure। ये नीचे जो है inner membrane। अच्छा,
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है और स्लाइमी होती है, and usually it is made up of along with the other inactive follicle cells. वो उन फीमेल गैमीट्स के साथ अटैच हुई भी होती है और मिलके बनी भी होती है, जो कि इनएक्टिव गैमीट्स होते हैं, दैट मींस दैट आर नॉट वायबल इन नेचर ना। वो गैमीट्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फॉर्म हुए होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। तो ये एक काफी जिसे कहते हैं ना कि थिक सा बड़ा सा स्ट्रक्चर स्लाइमी सा हमको नजर आ रहा होता है। इट स्टेट्स फॉर around 5 days, 3 to 5 days in an active form, average, और फिर उसके बाद ये डिग्रेड हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो। अच्छा, as far as this one is the outer membrane, yellow one is the inner membrane, and inside the inner membrane there is lots and lots of what can I say, cytoplasmic content, and the proper nucleus is there. Okay, and 23 number of chromatins. Okay, और इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और दूसरे ऑर्गेनल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एवरी सेल कंटेंट इसके अंदर सब मौजूद होता है, ठीक है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन से बना रही हूँ, दैट डजंट मीन के इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग है, अल्लाह के वास्ते ये मत समझना प्लीज, ठीक है। इट्स फॉर डिस्टिंक्टिफायर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्रीन कलर इसलिए यूज किया। अच्छा भाई, ये है फॉलिकल सेल्स, ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर थिक मेम्ब्रेन, and this one is the inner thick thin membrane, that is plasma membrane. Okay, this one is the cytoplasm, this one is the mitochondria, energy generator. Okay, and this one is the haploid nucleus, haploid nucleus. Okay, nucleus is haploid also here. Okay, so this is the female gamete, okay, that is the ovum, and this one is the male gamete, that is the sperm. Okay, now the male reproductive system, ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका जो जिसका जो वर्किंग है वो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन का और एक्सक्रीशन का जो पाथवे है वो सेम है, ओके। अच्छा, इसमें अगर आपको देखें तो इसमें ये आपको डायफ्राम के नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी नजर आ रही है और लोअर एब्डोमिनल कैविटी नजर आ रही है, ठीक है। इसमें दीज आर द किडनीज, ठीक है, दिस वन इज द राइट किडनी, दिस वन इज द लेफ्ट किडनी, ठीक है, left kidney, and from here the bladder is there and urethra is there, यहाँ पे ये urethra है और ये ureter है, okay। अच्छा, as far as the bladder is concerned, from the bladder there is a tube originate that is called the urethra. Urethra is responsible for conducting both the urine, एक तो यूरिन को कंडक्ट करेगा और साथ में स्पर्म्स को भी, स्पर्म्स की जो कंडक्शन होती है उसको ये फॉलो करता है या इसको प्रोसीड करवाता है। Urine, once the urine is going to be passed, there is no sperm, the sperms are not allowed to pass, and when the sperms are passed, urine is not allowed to be passed. If there is a disorder in that mechanism, that means during urination, if the sperm is going to be passed,
then what will happen, this is the disorder, that means कि इसमें फिर कोई जिसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जिसे कहा जाएगा डिफेक्ट आता है, उसकी वजह से जो है इस तरह के कंडीशंस आती हैं। अदरवाइज एक वक्त में एक ही चीज पास हो सकती है, ईदर यूरिन और ईदर स्पर्म्स। अच्छा, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर जो जिसे कहा जाए कि जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके अंदर पास है टेस्टिकल्स, ठीक है, ओके, टेस्टिकल्स, दिस वन इज द टेस्टिकल्स and this one is the pelvis, okay, so these two organs are responsible for the reproduction, okay. As far as testicles are concerned, testicles are outside the body and they are placed or in a sac-like structure called the scrotum. अच्छा, बॉडी से आउटसाइड होते हैं, जिस्म से बाहर होते हैं, स्क्रॉटम में होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नीड लो टेम्परेचर, या इनको जो है लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। दैट मींस यहाँ पे इनका जो मियोसिस होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न्ड, उनकी ओवरीज इनसाइड द बॉडी होती है, ठीक है, और उनका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड बॉडी टेम्परेचर पे जिसे कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज ओवम जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन स्पर्म को जो है 37 से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रॉटल सेक, ठीक है। अच्छा, ओके, एज फार एज द स्पर्म फॉर्मेशन इज कंसर्न, ये हमारे बेसिकली टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं और किस तरह होते हैं ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी जब टेस्टिस का जिसका जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। apart from this from the testis and tube like structure that is called the epididymis comes out, ठीक है। अगर टेस्टिस को हम थोड़ा सा नाच करके देखें तो इसके से ट्यूब जो होती है पॉलीजुलेट होती है एंड दैट ट्यूब इज अ कॉइल्ड ट्यूब, hollow coiled tube, and this hollow coiled tube is called the epididymis, okay? And that goes up from down to up, okay? ये hollow tube होती है और इसके साथ जिसे कहते हैं ना अटैच हुई होती है। अटैच मीन्स कि इसके साथ कॉइल हुई होती है, ओके। meiosis takes place here inside the testis, ओके। टेस्टिस के अंदर meiosis हो रहा होता है और स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं and sperms are going to get entered from here. यहाँ से sperm जो होते हैं immature form में they get entered and they stay there for maturity, ठीक है। इनकी जो टेल वगैरह जो फॉर्म होती है और मजीद जो मेच्योरिटी होती है ये इस एपिडिडर्मिस में होती है, ओके। ओके, एपिडिडर्मिस के अंदर होती है, इसमें जो है स्पर्म की मेच्योरिटी होती है और स्पर्म जो होते हैं वो इसी के अंदर काफी टाइम तक जो है वो स्टे करते हैं। Whenever the copulation takes place, then the mature sperms, which are present usually at the lower part of the epididymis, gets ejaculated through the sperm duct, ठीक है। इस sperm duct के थ्रू जो होते हैं वो फिर बाहर आते हैं। The sperms that comes inside the sperm duct, they are complete sperms and motile, ठीक है। कंप्लीट होते हैं और मोटाइल होते हैं, दैट मींस कि दे हैव हेड एज वेल एज द टेल स्ट्रक्चर, whereas the sperm that are immature in form, they don't have the tails, ठीक है। उनके अंदर टेल नहीं होती है, उनकी जो मेच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे दे गेट मैच्योर्ड they goes downwards into the epididymis and gets entered into the sperm duct, and whenever the copulation takes place or there is a need of a sex, तो फिर ये होता है कि ये ejaculate होते हैं through the sperm duct, okay।
ओके, दैट्स हाउ द टेस्टिकल वर्क्स एंड द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अभी हम इसका और मजीद जो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें देखेंगे कि हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस और टेस्टिकल्स। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक ये वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ना, ये एग्जैक्ट ब्लैडर और यूरिथ्रा की जो जैसे कहा जाए कि बिगनिंग है वहां पे मौजूद होता है। और इसके नीचे एक और छोटा सा ही ग्लैंड होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों ग्लैंड्स जो होते हैं ये एक तो न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं, किसका, बिफोर स्पर्म, यानी कि स्पर्म जो होते हैं जब वो जिसे कहा जाए कि स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके आ रहे होते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन, तो उसके आने से पहले जो ये आपकी यूरिथ्रा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और सीमन की प्रोडक्शन जो होती है वो भी सारी की सारी जो होती है, सीमन यानी कि लिक्विड मटीरियल, ठीक है, लिक्विड होता है। सीमन जो होता है वो लिक्विड सब्सटेंस होता है और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये प्रोवाइड मीडियम मीडियम स्पर्म फॉर स्विमिंग प्लस प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्ट किस चीज से करते हैं, फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई एसिडिक मटेरियल या जैसे कहा जाए कोई हार्मफुल मटेरियल इनसाइड यूरिथ्रा के अंदर मौजूद है तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं काफी हद तक। एक तो ये कि जो इजैकुलेशन के अंदर स्पर्म बाद में आते हैं, पहले सीमेन आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका नाम प्रोस्टेट इसलिए रखा गया प्रोस्टेट बिकॉज ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। किसकी तरफ झुका हुआ होता है, ये जैसे कहते हैं कि यूरेटर की तरफ, जो यूरेथ्रा की तरफ जो होता है वो झुका हुआ होता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो स्पर्म डक्ट होती है ना, ये ऊपर जब जाती है तो ये इसको क्रॉस करके जा रही होती है, किसको, यूरेटर को। यूरेटर ट्यूब जो होती है, यूरिनरी ट्यूब जो होती है इसको क्रॉस करती हुई जा रही होती है, इसको क्रॉस करके फिर यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रही होती है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम, बोनी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, वो बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बोनी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। दैट्स व्हाई कि इसमें कोई जैसे कहा जाए टैंगल ना हो जाए या जैसे कहा जाए टूट ना जाए या कोई इंजरी ना हो जाए, दैट्स व्हाई इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से पास हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फॉर्म्ड एंड एडजस्टेड। अच्छा, okay, today we are going to start with the female reproductive system of human. As far as female reproductive system of human is concerned, it's a bit different from the male reproductive system. एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है कि जो गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, दैट इज टेस्टिस जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है जो गैमीट फॉर्मेशन होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। दैट मींस के गैमीट फॉर्मिंग जो ऑर्गन है दैट आर ओवरीज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ओवरीज देख लीजिए यहाँ पे मौजूद है जो कि बॉडी के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और जो मेजर डिफरेंस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो डिफरेंट पाथवे पर है और जो यूरिनरी ट्रैक है वो एक डिफरेंट पैसेज है, एक डिफरेंट पाथवे है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आप जो फीमेल का यूरिनरी ट्रैक सिस्टम होता है और जो यूरिथ्रा होता है उसकी ओपनिंग सेपरेट है, और जो वेजाइना है उसकी जो ओपनिंग है वो अलग है, सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों कलेक्टिवली एक ही जिसे कहा जाए पाथवे को फॉलो करते हैं और वो है यूरिथ्रा। ठीक है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है वेजाइना का पाथवे जो है, रिप्रोडक्शन का जो पाथवे है वो एक अलग है, और जिसे कहा जाए एक्सक्रीटिव पाथवे जो है वो डिफरेंट है। ओके, अच्छा, यही वजह है कि और उसके बाद एक और चीज ये भी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, यूट्रस और वोम, ठीक है, ये बेसिकली
इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंटर में मौजूद होता है। और जैसे कहा जाए कि आपका जो लोअर एब्डोमेन है उस पोर्शन के अंदर जो है ये यूट्रस मस्कुलर बॉडी जो होता है वो मौजूद होती है। अच्छा, ये मैक्सिमम ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ की होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। दैट मीन्स कि ये जो पूरी लेंथ है इसकी ये 6 सेंटीमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये हाईली इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है एंड इट कैन इजीली कैरी the weight of around 3 to 3.5 kg or more than 3 to 3.5 kg weight। जो एक नॉर्मल बेबी होता है जो कि 7 पाउंड्स का होता है, यूजुअली 7 पाउंड्स और 7.5 पाउंड्स का ये नॉर्मल बेबी का वेट होता है। ये 3 to 3.5 केजी के अराउंड लगभग इतना होता है, ठीक है। तो ये मस्कुलर बैग जो है वो इतना वजन जो है वो बहुत आराम से जो है कैरी कर सकता है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस if the proper care is being taken और हार्मोनल साइकिल जो है वो अगर फीमेल की प्रॉपर हो तो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये सेंटर में होता है। और अगर आप देखें तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज द किडनीज, वो जो है वो अपनी पोजीशन पे उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे मेल की होती है। लेकिन जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर जो है जिसे कह सकते हैं कि टिल्ट हुआ है या उधर की तरफ मूव हुआ हुआ है, सॉरी राइट साइड की तरफ जो है टिल्ट हुआ हुआ है या मूव हुआ हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से कि सेंटर में जो है आपका यूट्रस जो है वो जगह ले रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो है किडनी का और यूरेटर जो है ये सारा जो पोर्शन है ये बैक साइड पे होता है और यूट्रस जो है फ्रंट साइड पे होता है, ठीक है। और इन बिटवीन दिस वन जो किडनीज का जो पोर्शन है सिस्टम है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज द यूट्रस, इसके जिसे कहा जाए कि सेंटर में जो है वो आपकी जिसे कहा जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी इंटेस्टिनल सिस्टम और इंटेस्टाइन जो होती है वो रिजाइड कर रही होती है, ओके। इंटेस्टिनल सिस्टम जो होता है आपकी जिसे कहते हैं कि इंटेस्टाइन जो होती है वो सारी इसी पोर्शन के अंदर इन्हीं के साथ इंटरकेट हुई होती है और इन्हीं के साथ जिसे कहा जाए एडजस्ट हुई होती है। अच्छा, ये जो मस्कुलर बैग है अगर आप इसको देखें तो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो पर्पल कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है इट्स इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। ये जो है ये इलास्टिक मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर वॉल है, ठीक है। और ये जो है पूरा जिसे कहा जाए यूट्रस को डिफाइन करती है। इसी इलास्टिक मस्कुलर वॉल से जो है ओवरीज जो होती है वो अटैच हुई भी होती है और जिसे कहा जाए कि बाहर की तरफ एलिवेट हुई भी होती है, सही है। अच्छा, इस मस्कुलर बैग से जो है टर्न करके दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ओवरी से अटैच नहीं हुए होते बल्कि ओवरी को कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह करके दैट मीन्स के फर्स्ट तरह ये ओवरी है तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैपिंग ट्यूब जिसे हम कहते हैं वो इस तरह करके डिस्टेंस के साथ इसको कवर किए हुए होगा। दैट मीन्स कि अगर इसमें से ओवरी के अंदर से अगर कोई चीज निकले तो वो फौरन जिसे कहते हैं कि उसको कैच कर ले। और ये जो है ओविडक्ट और फैलापियन ट्यूब्यूल, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है इंटरनल लाइनिंग इज कॉल्ड दी एंडोमेट्रियम। ये जो इंटरनल लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड दी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है जिसको हम इंटरनल लाइनिंग कह रहे हैं एंडोमेट्रियम, ओके। एंडोमेट्रियम जो है ये बेसिकली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हुई होती है दैट मींस के थिक मस्कुलर वॉल जो होती है वो मेंटेन हो रही होती है और ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है दैट एंडोमेट्रियम बिकम थिक, ठीक है। वो थिक होती जाती है ड्यू टू ब्लड टिश्यूज, ठीक है। ब्लड के टिश्यूज जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं इस पे। और ये जो पूरी साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल
वो 28 डेज की होती है नॉर्मल। नॉर्मल फीमेल में 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और और बहुत सी फीमेल में वेरी भी करती है कि बहुत सी फीमेल में 28 डेज की होती है, बहुत सी फीमेल में 30 सम 32। दैट मीन्स के डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो है 30 टू 35 डेज की जो है ना तक जो है ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जाती है। तो अगर जैसे कहा जाए कि 28 डेज की साइकिल अगर किसी फीमेल की है तो वो मंथ में एक दफा या 30 डेज की अगर साइकिल है तो वो मंथ में एक दफा जिसे कहा जाए कि मेंस्ट्रुएशन को जिसे कहा जाए कि फेस करेगी। अगर लेस देन 28 डेज की है, दैट इज 21 डेज की भी बहुत सी फीमेल्स की बहुत रेयर होता है कि साइकिल होती है। तो अगर 21 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो मंथ में 2 दफा जो है माइट बी पॉसिबल कि वो जो है मेंस्ट्रुएशन को जो है फेस करेगी। और अगर जैसे कहा जाए मोर देन 30 डेज की है तो ऑलमोस्ट इन बिटवीन 2 मंथ्स एक दफा वो साइकिल को जो है फेस करेगी। इसमें जो है ये कहते हैं ना कि अगर किसी को 2 मंथ्स में एक दफा मेंस्ट्रुएशन होती है या ब्लीडिंग होती है या मंथ में 2 दफा ब्लीडिंग होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर और रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, जो कि एक हार्मोनल साइकिल के नॉर्मल हार्मोनल साइकिल की जो कंडीशंस प्रोड्यूस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है और मंथ में 2 दफा वो साइकिल को फेस कर रही है, तो ये हरगिज ये बात नहीं है कि उसके अंदर कोई खराबी है या उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है। इट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द डेज। ओके, सो दैट्स हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरिड आउट। अच्छा, इसको जो है हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जरा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो कि हमारा है यूट्रस का टॉपिक। अच्छा, ये जो मस्कुलर बैग है इसकी जो लेबलिंग है जो बुक के अंदर दी हुई है, इस बुक के अंदर वो भी जरा देख लेते हैं और उसको भी डिस्कस करते चले जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो 21 डेज में या 28 डेज तक जो है काफी थिक होती है और फिर थिक होने के बाद जो है अगर कपुलेशन होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये लाइन लाइन जो होती है एंडोमेट्रियम की थिक लाइन होती है जो कि ब्लड टिश्यू से बनी हुई होती है, ये फर्दर जो है थिक होती चली जाती है, प्लास्टिक की फॉर्म में आ जाती है। और अगर जिसे कहा जाए कि कपुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और जाइगोट नहीं फॉर्म होता है या बेबी नहीं फॉर्म होता है, so then it will get shed after 28 days or 21 days or 30 days or 32 days, and the female experience monthly menstrual cycle or monthly bleeding if there is no copulation or if there is no fertilization even after copulation. Okay, so अब ये है कि इसमें लेफ्ट किडनी ये आपको नजर आ रही है, फिर यूरेटर है, ये यूरिनरी ट्रैक सिस्टम पूरा चल रहा है, इसमें ब्लैडर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ब्लैडर हियर शोन डिस्प्लेस टू वन साइड, नॉर्मली इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यानी कि यूट्रस के फ्रंट पे जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है, बट ये थोड़ा सा साइड में हो जाता है बिकॉज यूट्रस जो है सेंटर में मौजूद है। अच्छा, यूट्रस जो है इसका बैग है और ये इसका सर्विक्स है, ठीक है। ये इसका सर्विक्स है, दैट इज इन अदर वर्ड्स द बेसिक ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है, जहां से यूट्रस स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली लोअर एब्डोमेन जहाँ पे आपका एंड होता है ना फीमेल्स का, लोअर एब्डोमेन जहाँ पे एंड होता है वहां पे जो है यूट्रस का जो सर्विक्स है वो मौजूद होता है। इससे नीचे जितना भी पोर्शन है ये जो है ये वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है या फिर हम इन अदर वर्ड्स बर्थ कैनाल, ठीक है। इसका जो है ये सिर्फ एक पैसेज है, दैट मीन्स के ये बर्थ कैनाल जो है वो एक पैसेज है जो कि जिसे कहा जाए कि कॉपुलेशन के लिए जरूरी है, इंटरकोर्स के लिए जरूरी है, और इसके अलावा जो है ना बेबी बर्थ में जो है ये पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर डिलीवरी। अदरवाइज इसका ऐसा कोई रिप्रोडक्शन के अंदर सिवाय पैसेज प्रोवाइड करने के सिवाय जैसे कहा जाए कि इंटरकोर्स के और कोई दूसरा इसका फंक्शन एज सच इतना वो नहीं है। जो एक्चुअल फंक्शन है वो अबव द सर्विक्स जो है हार्मोनल कंट्रोल्स और ये सारी चीजें जो होती है अबव द सर्विक्स चल रही होती हैं, जिसके अंदर सॉरी यूट्राइन बैग होता है, मस्कुलर बैग है, फिर उसके बाद ओवरीज है और इन पे एक्ट करते हुए हार्मोन्स है डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज अगर, हाँ एक ये है कि ओविडक्ट जो मैंने तुम लोगों को बताया था फ्लैपिंग ट्यूब, ये जो है ना ये बेसिकली हॉलो ट्यूब होती है
और एग जो रिलीज होता है जो कि ओवरी से निकल के आता है और ये फ्लैपिंग ट्यूब के अंदर आता है, ओविडक्ट के अंदर आता है, इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एंड रिजाइड इन द ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर रिजाइड करता है until and unless after intercourse the sperm gets swim and reach to them and fertilize it। ठीक है, स्पर्म वहां तक पहुंचे और पहुंच के इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देते हैं। जब जाइगोट बना देते हैं तो फिर उसके बाद इट गेट्स अटैच ऑन द हेड ऑफ द यूट्रस फर्स्ट। यहाँ पे टॉप पे जो है ये आके फिक्स्ड होता है जाइगोट, और फिर यहाँ से जो है पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट और बेबी डेवलपमेंट होती है, और जो पूरा एरिया होता है यूट्रस का 9 मंथ में ऑक्यूपाई कर लिया जाता है थ्रू बेबी। ठीक है, so that's how the structure of the uterus look alike। अच्छा, as far as the production of gametes in the female is concerned, फीमेल में जो ओवरी होती है एक मंथ में एक ओवरी जो होती है वो एक एग प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल जो होते हैं वो टेस्टिकल्स में बहुत सारे स्पर्म एट अ टाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फीमेल में फर्स्ट करें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस ओवरी से एक एग रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाली ओवरी एक्टिव होगी और ये एग रिलीज करेगी। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें दोनों ओवरीज एक्टिव होकर दो एग डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के रिलीज कर देती हैं, और दोनों जो ओविडक्ट्स होती है उसके अंदर दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के एग्स जो होते हैं रिसाइड कर रहे होते हैं, उनको दो डिफरेंट स्पर्म जब से फर्टिलाइज करते हैं तो जिसे कहा जाए नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस फॉर्म होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कौन कैसे ट्विंस होते हैं, जो हम शक्ल ना हो, दैट मींस के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के होते हैं, बट ट्विंस होते हैं, डेवलप एक साथ होते हैं, उनकी एज एक होती है, बर्थ टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये कि उनके फेस फीचर सब चीजें अलग होती है, बिकॉज दोनों एक्स का जेनेटिक मेकअप और दोनों स्पर्म का जेनेटिक मेकअप जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं कि हाउ द ओवरी वर्क्स इनसाइड दी विद द यूट्रस, एंड उसके उसका जो कोऑर्डिनेशन चलता है यूट्रस के साथ वो किस तरीके से चलता है, एंड हाउ द हार्मोन्स वर्क ऑन द ओवरी एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब जरा हम ये देखते हैं कि हाउ द ओवरी वर्क्स अलोंग विद द व्हाट कैन आई से हार्मोनल कंट्रोल, कि किस तरीके से ओवरीज के अंदर जो है मियोसिस चलता है और हार्मोन का कंट्रोल जो है वो होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं साइडल व्यू जो है यूट्रस का बना रही हूँ। ये आपकी ओविडक्ट है। ठीक है, फनल लाइक होती है और इसमें यहाँ से जो है अटैच होगी, ये आपकी ओवरी जो है ये यहाँ पे ऐसे करके अटैच होगी। ठीक है, और ये जो है ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइन, जो कि 28 डेज में थिक होती चली जाती है। अच्छा, ये जो है ये इस तरीके से पूरी कवर की हुई होती है, किसको, ओवरी को, ये ओवरी है। अच्छा, और ये जो है ये ओवी डक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, और ये इलास्टिक मस्कुलर बैक, दैट इज, ठीक है, और यहाँ नीचे जो है ये आपके वजाइना, ठीक है। अच्छा, ये ओविडक्ट जो है ये हॉलो है। ठीक है, अब ओवरी को देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर।
अच्छा, ओवरी के अंदर होता है बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन से मुराद है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन से मुराद ये है कि ओवरी जो है उसके जितने भी मसल्स हैं वो अपनी मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए नॉर्मली क्या क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस से इसकी क्या हो रही है, ओवरी की ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है सेल्स की और मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है। अब इसकी मेंटेनेंस हो रही है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो मियोटिकली डिवाइडेड सेल्स हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्शन की वजह से अपना वे ऑफ डिवीजन चेंज करेंगे और माइटोसिस से किसमें डिवीजन में, कौन से वाले डिवीजन में आ जाएंगे, मियोसिस के डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। और वो जब वो अपने सेलुलर डिवीजन का जो मोड है उसको चेंज करेंगे तब हम कहेंगे कि ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। दैट मीन्स के अपनी जो एक प्रॉपर जो उनकी माइटोटिक साइकिल चल रही थी उसको खत्म करके उन्होंने अपने आप को गैमेट फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया, मियोटिक साइकिल के लिए। और वो कहाँ होती है, वो सबसे ज्यादा जो इनर लाइनिंग होती है ओवरी की, इंटरनल लाइनिंग होती है, उसमें जो सेल्स आए हुए होते हैं माइटोटिकली डिवाइड हुए हुए, वो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनके ऊपर एक्ट करता है ब्रेन से, वो इस पे अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी लिखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इससे क्या चीज रिलीज होती है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच जो होता है ये ओवरी के जो टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है और यहाँ पे जो है फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे एग्स होते हैं और इनमें से सिर्फ एक एग जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लायक होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो नॉन वायबल एग्स होते हैं, ठीक है। और ये फर्दर मूव करेगा तो इनमें से जो एक फर्टिलाइज होने वाला एग होगा वो सेंटर के अंदर होगा, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो है वाटरी सब्सटेंस होगा, ठीक है। और ऊपर एक हार्ड लेयर जो होगी वो फॉलिकल सेल्स की होगी, वो वाले जो नॉन वाइबल फॉलिकल सेल्स हैं वो एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। यही वाले जो फॉलिकल सेल्स है इनमें से जो ऐसे सेल्स होंगे जो नॉन वाइबल होंगे, यानी कि जो जिसे कहा जाए कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और जो गैमीट में नहीं आ सके वो इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे और टोटल ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड दी ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओके। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इससे जो है जो एक एक हार्मोन निकलना शुरू होगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से क्या चीज सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। और जो एस्ट्रोजन होता है उसका फंक्शन है यूट्राइन लाइनिंग जो होती है उसकी थिकनिंग और उसकी रिपेयर, ठीक है। इसमें से एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रिलीज करवाएगा एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो है ये बेसिकली किसके ऊपर, थिकनिंग ऑफ थिकनिंग थिकनिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन लाइनिंग प्लस रिपेयर। अगर जैसे कहा जाए कि ये खत्म हो जाएगी या कहीं से टूटेगी तो उसको जो है ये मेंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है जैसे कहा जाए कि डे 9 से जो है अपना एक्शन शुरू कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और जिसे कहा जाए कि ये चलता है डे 12, डे 14 और अराउंड डे 17 तक, ठीक है। ये डे 9 से फॉर्म होता है,
डे 9 से और हार्मोन, और ये अपना एक्शन जो कर रहा होता है वो डे 17 तक लेके जा रहा होता है, ठीक है, 9 to 17 डे तक, ठीक है। अच्छा, और जो है जो ये फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, ये बेसिकली जिसे कहा जाए कि ब्लीडिंग के 3rd डे से जो है रिपेयरिंग का जो प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, तो उसमें जो है ना डे 3 से जैसे कहा जाए कि फॉलिकल जो बनने शुरू हो रहे होते हैं वो डे 17 तक, मतलब पूरा ये प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3rd डे से जो है फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि अब जो है ओव्यूलेशन का टाइम जब से करीब आएगा, तो ये जो पूरा ग्राफिन फॉलिकल है, इसका नाम मैंने लिख दिया था पहले, ग्राफिन फॉलिकल, ये जो है किसकी तरफ मूव करने लग जाएगा, ये जो है सरफेस ऑफ दी ओवरी मूव करने लग जाएगा, और मूव करके एक जिसे कहते हैं ना, जैसे बम्प सा फॉर्म कर देना, या एक स्वेलिंग सी जो होगी वो ओवरी के सरफेस के ऊपर जो है वो फॉर्म होने लग जाएगी, और जो ये एग होगा ये थोड़े टाइम में इसमें से निकल के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको येलो बना देते हैं तो ताकि जो है नजर आएगी, ये सरफेस के ऊपर आके और ये ऐसे करके रिलीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ये रिलीज होगा तो दूसरी तरफ से जो ओविडक्ट होगी वो इसके इर्द गिर्द पहले से ही मौजूद होगी, बहुत ज्यादा करीब होती है, और जब ये ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इसको कवर कर देती है कि कहीं से कहीं तक भी कोई एग जो है वो फरार हासिल ना कर सके और जो है वो डायरेक्टली किसके अंदर आ जाए, इसके अंदर, यानी ओविडक्ट के अंदर एग जो होता है वो चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो है जैसी ओव्यूलेशन होगी, अब ओव्यूलेशन होने के लिए ब्रेन से एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलेगा LH, ठीक है। ये जो LH होगा ये जब ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आके एक्ट करेगा तो ही ओव्यूलेशन करवाएगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन करवाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर एक जिसे कहते हैं कि ड्राइड फॉर्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ये ड्राइड स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बस एक ये बॉडी होगी जो कि हार्मोन के रिलीज के लिए और मेंटेनेंस के लिए काम करेगी, कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। इससे जो है एक हार्मोन रिलीज होगा और वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं सब ब्रेन की तरफ से हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर भी एक्ट करेगा और फिर ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो उसके साथ ही जो है यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक होने लगेगी, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर एक्ट करेगा, उसको थिक करेगा, उसके मस्कुलर वॉल को मेंटेन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेमरी ग्लैंड्स जो होंगे, मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स एनलार्जमेंट होगी और जिसे कहा जाए मेंटेनेंस होगी। लैक्टेशन जो होती है वो इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से होता है। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, एस्ट्रोजन जो है वो ब्यूटी हार्मोन भी है। दैट मींस के ये फीमेल्स को स्किन की ब्यूटी और बोन्स की स्ट्रेंथ इन सबको मेंटेन करते हैं जब तक फीमेल यंग है, जवान। Okay, today our topic is about the menstrual cycle of females, ठीक है, in mammals. First of all, the pituitary gland, which is present in the brain, it secretes the follicle stimulating hormone that stimulates the follicle in the ovary. ये फीमेल ओवरी है, पूरे इसमें जो स्टेजेस है वो सारी इसमें बताएं। ओवरी में फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। इन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मैच्योर होता है और कंप्लीट गैमीट फॉर्म में आता है, और बाकी सारे जो होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने और लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये सारे जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि एग को प्रोटेक्ट किए हुए होता है या ओवम को प्रोटेक्ट किए हुए होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओवरी के थ्रू जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। अच्छा,
डे 1 से लेके डे 5 तक नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होती है, दैट मींस मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है। और डे 5 से जो है 5th डे से जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑलमोस्ट 5th डे से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है और फॉलिकल्स बनाना शुरू करता है। डे 5 से लेके डे 11 तक कंप्लीट फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रोसीजर जो बन रहा होता है वो बनना शुरू होता है। उसी दौरान जो है एक एग जो है वो मैच्योर हो चुका होता है डे 11 तक। और वहीं पे फिर डे 11 से लेके डे 14 तक जो है ये ग्राफिन फॉलिकल एग्जिस्ट करता है, इसकी मजीद मैच्योरिटी होती है ओवम की, और इससे एस्ट्रोजन जो होता है रिलीज हो रहा होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली बिफोर रिलीजिंग द एग जो आपका यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर रहा होता है। दैट मींस के नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो है जो यूट्रस की इंटरनल एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी रिपेयरिंग हो रही होती है डे 5 से डे 11 ऑलमोस्ट डे 14 के दरमियान भी। और जो है वो थिकनेस आ रही होती है और एक और जो है वो मस्कुलर लेयर ब्लड की जो होती है वो बन रही होती है। ठीक है, डे 14 के आते आते तक डे 14 से 15 और ऑलमोस्ट 16 14 15 16 ये जो टाइम होता है इसमें ग्राफिन फॉलिकल से ओवम जो होता है या एग जो होता है वो रिलीज होता है और वो जो है आपके फ्लैपिंग ट्यूब्यूल और ये जिसे कहा जाए ओविडक्ट के अंदर जो है वो आ जाता है एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। अच्छा, ओव्यूलेशन कराने के लिए ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एलएच या लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो होता है ये ओव्यूलेशन करवाता है और एग को मेंटेन करवाता है, रिजाइड करवाता है ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है तो ग्राफिन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कॉर्पस लुटियम कहते हैं। कॉर्पस लुटियम जो होता है इसके ऊपर भी लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है और जिसकी वजह से कॉर्पस लुटियम जो है वो बेसिकली रिलीज करने लग जाता है प्रोजेस्टेरॉन, एक और हार्मोन। अच्छा, ये सब चीजें जो है ये ओवरी रिलीज करती है। ओवरी दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो थिकनेस करता है यूट्रस वॉल की, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस थिकनेस को मेंटेन करता है और मजीद थिकनेस लेकर आता है। साथ में फीमेल को लैक्टेशन के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डे 17 तक ओवम या एग जो होता है वो रिजाइड करता है और फिर उसके बाद जो इसकी फर्दर मेंटेनेंस वगैरह चल रही होती है। इफ copulation takes place or fertilization takes place, if the zygote is formed, then this hormone release continuously, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों जो है वो रिलीज होते हैं और वो उसको प्लासेंटा बना देंगे। जो ब्लड टिश्यू की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको मजीद थिक करते करते प्लासेंटा बना देंगे और उसका कनेक्शन जो है वो फीटस के साथ जो है वो कनेक्ट करवा देंगे। अगर जिसे कहा जाए कि पॉपुलेशन के बाद या कहा जाए कि कोई ऐसा चांस नहीं है कि उसमें जो है ज़ाइगोट फॉर्मेशन हुई हो या फर्टिलाइजेशन हुई हो, तो प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है और एस्ट्रोजन निकलना भी जो होता है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो है डे 28 डे पे आकर जो है ये पॉलिसिटिव खत्म हो जाता है एंड देन अगेन अनदर ब्रीडिंग साइकिल इज स्टार्टेड। So that's how the menstrual cycle is completed and 28 days cycle, 28 days cycle, menstrual cycle of the female is explained. ओके, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंपल ये है कि एग रिलीज हुआ और ओविडक्ट के अंदर आया और ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म्स आए, उन्होंने फ्यूज किया, एक ही स्पर्म फ्यूज करता है एक एग को और फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ वो रिजाइड हो गया हेड ऑफ यूट्रस पे। ठीक है, यूट्रस के हेड पे एम्ब्रियो आके रिजाइड हो गया। अब एम्ब्रियो जो है जब वो ग्रो कर गया है तो इट विल फॉर्म द फीटस एंड दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। अच्छा, ये जो है ना ये बेसिकली क्या है जनाब, ये आपके यूट्राइन वॉल, यूट्राइन मस्कुलर वॉल। ओके, अच्छा, और ये जो है ना ये जो स्पेशियस एरिया है दैट इज कॉल्ड द मैटरनल ब्लड स्पेस, मैटरनल ब्लड स्पेस। ओके, यहाँ पे जो है ब्लड स्पेस होती है और एम्ब्रियोनिक विलाय है। इन अदर वर्ड्स हम इनको ये भी कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक विलाय। ठीक है,
एम्ब्रियोनिक विलाय है और मैटरनल ब्लड स्पेस जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पोर्शन को भी, दिस वन इज द मैटरनल, मदर की जो ब्लड स्पेस है वो है, और एम्ब्रियोनिक विलाय जो है स्पेशियस वाली जो है ये वाली सारी, इसके अंदर ये जो है ये फीटल ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और ये जो है ये दिस वन इज द एम्नियोटिक और एम्नियन, ठीक है, एम्नियन, ठीक है। अच्छा एम्नियन है ये, और इसके अलावा जो है दिस वन इज द उम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो यहाँ से निकल रही है ये जो पोर्शन है ये है उम्बिलिकल, उम्बिलिकल कॉर्ड, इस कॉर्ड के, ये कॉर्ड पूरी इधर लिपटी हुई होती है और इसी के अंदर से ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क निकल रहा है जो कि एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक विलाय के अंदर जो है स्पेसिस के अंदर मौजूद है। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड आएगा और यहीं से सारा गैसियस एक्सचेंज होगा, मदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, गैसेस हैं, ऑक्सीजन है वो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ठीक है। और जैसे कहा जाए बेबी के जो है ना, बेबी से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड के अंदर जाएगी, डिफ्यूज होगी, और साथ में वेस्ट, ठीक है। अच्छा बेबी का जो वेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना टॉक्सिक जो भी मेटाबोलाइट्स होंगे, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो भी प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, वो सब के सब मदर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर, ठीक है, ये सारा सब कुछ जो है बेबी से मदर में चला जाएगा और मदर से जो है बेबी में अच्छी चीजें आ जाएंगी, एंड दैट्स हाउ for the 9 months of time period it's going on in the same, and this one is the amniotic fluid, okay. By this way the exchange of blood and the exchange of the nutrients, so the mother blood and the fetus blood takes place. So by this it is completed, and in the next class we will continue with what is the further development of the embryo and delivery, and as well as the major exchanges of the nutrients and how the villi works, and the major exchange of the nutrients as well as the waste materials from the fetus to the mother and from the mother